Yeah. With this, I would like to invite Mrs. Sandhya Prakash Turke ma'am, who is a social service superintendent at Regional Mental Hospital Nagpur. She has written 100 more articles in a newspaper. A story writer, has 30 years experience of counseling, former president of India Epilepsy Counseling, former president, member of Swikar Nagpur, fo- founder, member Samvad Epilepsy Parent Self-Help Group. She'll be guiding us with social aspects of depression. Over to you, Sandhya ma'am. Hello everyone. Am I audible? Yes, ma'am, you're audible. Okay. May I start? Yes, ma'am, you can. Okay. Hello everybody. Good evening. Up till now, we have learned from our speakers the factors responsible for depression and suicide. Studies have shown that there can be varied aspects to depression and suicide, such as ethnicity, gender, family characteristics, socioeconomic status, social risk factors, etc. Let us now understand more about the social factors for depression and suicide. Social factor is as important as genetics and the other factors. Following up we are discussing now social risk. First one is previous history of depression or suicide. The patients with previous history of suicide attempt or depression are more susceptible to having it repeatedly. The second risk factor is family factors such as parent psychopathology, that is parental history of any psychiatric problem. Secondly, family history of suicide behavior. Thirdly, family discord, that is quarrels and differences between the family members. Loss of parents due to death or divorce. Poor quality of parent-child relationship, maltreatment by parents to the child. Sometimes dysfunctional families, that is families with conflicts, misbehavior, child neglect or abuse, etc. And the last, but I think not least, generation gap. आजकल बहुत सारे लोगों में हम जनरेशन गैप भी देखते हैं और दैट इज अ फैमिली फैक्टर. The third risk factor can be physical and sexual abuse. Sexual abuse in childhood leads to significant increase in poor mental health outcome, including suicidal ideation. Risk factor increases when abused by an immediate family member or repeated sexual abuse. Greater severity of the abuse, higher is the risk. मॅडम एकदा इंटरप्ट करू का? तुमचा व्हिडिओ सुरू कराल का? ओके ओके, नाही का? हा, नाही, व्हिडिओ नाहीये. जस्ट अ मिनिट. आता आलाय? येतोय. परत बंद झालाय. एक मिनिट. व्हिडिओ परत बंद होतोय सारखा. हा, आता? हा, येस येस. हा, येस. ओके. ऐकू येत होतं ना आपण बरोबर? ऐकू येत होतं. ओके. तुम्ही थोडं पहिले 1-2 वाक्य आधीपासूनच सुरू करा. बरोबर. ओके ओके. We are discussing about the family factors such as parent psychopathology, that is parental history of any psychiatric problem. They should be taken care of. Family history of suicide behavior, जिनके घर में अगर ऐसा family history है, they should also be taken care of. Family discord, family quarrels जो है differences है, उसकी वजह से भी risk बढ़ सकता है. Loss of parents due to death or divorce, इसकी वजह से भी मतलब single parent family में भी risk factors बढ़ सकते हैं. Poor quality of parent-child relationship may affect. Dysfunctional families, that is families with conflicts, misbehavior, child neglect or abuse, ये भी जहाँ है वहाँ पर risk factor बढ़ सकते हैं. And last, generation gap, but it is actually आजकल काफी सारे घरों में ये दिखता है कि generation gap में काफी सारे family quarrels होने लगे हैं. The third risk factor can be physical and sexual abuse. Sexual abuse in childhood leads to significant increase in poor mental health outcome, including suicidal ideation. Risk factors increase when abused by an immediate family member or repeated sexual abuse. Greater severity of the abuse, higher is the risk. The fourth risk factor may be
चांस चेंज ऑफ रेसिडेंस एंड सोशियो इकोनॉमिक क्लास। अभी कोरोना के पैंडेमिक पीरियड में अपन ने सभी देखा है कि काफी लोग अपना रेसिडेंस छोड़कर और काफी जगह में माइग्रेंट्स हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से उनके सोशियो इकोनॉमिक क्लास में भी काफी डिस्टर्बेंस आए हैं। और जो लोग माइग्रेंट्स रेगुलरली है, मतलब एक जगह से उठकर दूसरे जगह काम करने हमेशा ही जाते हैं वो, या फिर जिनके ट्रांसफर हमेशा ही होते हैं वो, ऐसे फैमिलीज में सुसाइड अटेम्प्ट्स मोर हो सकते हैं। रेसिडेंशियल मोबिलिटी इज एसोसिएटेड विद सुसाइड अटेम्प्ट इन एडल्ट्स एंड फीमेल्स, ये भी काफी जगह में पाया गया है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर इज सेक्सुअल ओरिएंटेशन। Actually, youths who report same-sex sexual orientation are at greater risk than their peer to attempt suicide. That is, gay, lesbian, or bisexual adolescents who experience family rejection or a negative family reaction are at greater risk. Still, it is not actually accepted in Indian culture. तो काफी काफी लड़कों को या काफी लड़कियों को इस बात का बहुत बड़ा सामना करना पड़ता है, फैमिली रिजेक्शन और बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे में उनके रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। आजकल और एक नया देखा गया है बुलिंग और ट्रोलिंग, तो जिसकी वजह से भी रिस्क फैक्टर बढ़ रहे हैं। अल्कोहल यूज ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स, तो अल्कोहल अब्यूज इज नोन टू बी एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ सुसाइड बिहेवियर। हेवी एपिसोडिक ड्रिंकिंग एंड सुसाइड अटेम्प्ट इज मेंटेन इवन आफ्टर कंट्रोलिंग फॉर डिप्रेशन। तो कितना भी डिप्रेशन के लिए कंट्रोल किया जाए, लेकिन फिर भी अल्कोहल और ड्रग्स का यूज अगर शुरू है तो उसमें आपको रिस्क फैक्टर दिखेगा ही डिप्रेशन के लिए या सुसाइडल आइडिएशन के लिए। कुछ बातें अभी हम देखेंगे कि ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, इनको हम सोशल सपोर्ट की वजह से कैसे वी कैन प्रिवेंट सुसाइड। दूसरी बात ऐसी है कि हमको हमारे फैमिली की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, फैमिली इंटैक्ट रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो ज्यादा देखना है, और जिसकी वजह से हमको हमारे फैमिली से ही सपोर्ट मिल सके। एक्चुअली social network of family, friend and colleagues relationship is an important part of and foundation for many people's sense of self-esteem. Those who enjoy close relationship with others also cope better with stress and have better overall psychological and physical health. Social networks provide opportunity for sharing emotion and feeling connected to others. Isolation, on the other hand, can lead to feeling of alienation and depression, which leads to suicidal thought and behavior. Social support can help prevent someone moving from suicidal thoughts to suicidal attempts. Social cultural groups can be supportive and create feeling of belongingness, love and comfort. They can serve as a safety net to catch individuals who are experiencing problems or stress. Actually, these are the preventive measures. लेकिन इसके साथ मुझे और एक बात बताना भी जरूरी लगता है कि प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ अपने को ट्रीटमेंट पार्ट की तरफ जाना भी उतना ही जरूरी है। अगर वंस इट इज डायग्नोज्ड एज डिप्रेशन और सुसाइडल आइडिएशन, तो उसके लिए हमको ट्रीटमेंट की तरफ जाना भी जरूरी है। बट बहुत जगह में मेंटल इलनेस या फिर कोई भी एनी साइकियाट्रिक इलनेस, लोग उसको स्टिग्मा समझते हैं, और वो स्टिग्मा होने की वजह से ही वो किसी डॉक्टर तक पहुंचने से कतराते हैं। So I want to say that you have to combat stigma. Psychiatric problems are considered to be stigma in Indian society, and hence people avoid talking about it and avoid treatment. But your negligence towards illness reduce opportunities for employment and affect social relationship. तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना उसके लिए ज़रूरी है। With proper timely treatment, patient can get cured sooner. Education about these issues is important to combat stigma, promote knowledge of risk factor and treatment options. It is important to take early treatment, otherwise the disease may get worse and suicide may occur. It is important to reach out to the people. People avoid treatment due to distance and high cost. ये सारी बातें हम लोग जहाँ मेंटल हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो ये हमारा एक्सपीरियंस है। काफी लोग जो बहुत गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो काफी दूर तक एक दिन की मजदूरी छोड़कर और ट्रीटमेंट के लिए वहां तक आना नहीं चाहते। दूसरी बात है कि अगर वो प्राइवेट में जाना चाहे तो वहां बहुत हायर कॉस्ट होता है, और इसकी वजह से वो लोग ट्रीटमेंट लेना टालते हैं, अवॉइड करते हैं। तो इसलिए दिस इज जस्ट अ सजेशन टू गवर्नमेंट कि कुछ हद तक ट्रीटमेंट जितना जल्दी घर के पास हो, जितना पास में अपन जाकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, वैसे फैसिलिटीज अवेलेबल कराना चाहिए।
और इंश्योरेंस कंपनी शुड ऑल्सो इंक्लूड मेंटल इलनेस सो दैट ट्रीटमेंट एफर्ट्स विल इंक्रीज, क्योंकि वो भी है कि अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो लोग बहुत अवॉइड करेंगे, और इंश्योरेंस कवर हो रहा है तो काफ़ी सारे लोग सोचेंगे भी. एक्चुअली गवर्नमेंट शुड ट्रेन करंट एंड न्यू हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स. ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स उतने ही करंट नॉलेज लेकर है या फिर अपडेटेड है, तो वो बहुत जल्दी दे कैन स्क्रीन द डिप्रेशन, सुसाइडल आइडियाज एंड सब्सटेंस अब्यूज, सो एट द लेवल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स. जल्दी समझ में आएगा, उतना जल्दी ही ट्रीटमेंट की तरफ भी वो अप्रोच कर सकते हैं. Even they should provide additional screeners should be provided. Educate and collaborate with media. मीडिया का काफी बड़ा रोल होता है, काफी सारी बातें हैमरिंग कर करके वो लोग बताते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका फायदा, मीडिया का फायदा गवर्नमेंट ने लेकर अबाउट डिप्रेशन, सुसाइडल आइडियाज जैसे भी आइडेंटिफाई कैसे करना है या प्रिवेंट कैसे करना है, या सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइंस क्या करती है, तो इन सब के बारे में मीडिया के साथ कोलैबोरेट करके उसकी काफी ज्यादा पब्लिसिटी होना भी बहुत जरूरी है. नेक्स्ट इज लिमिट एक्सेस टू द मेथड्स. काफी सारे लोग हम देखते हैं कि किसी ने कुछ केमिकल ले लिया, किसी ने कुछ पॉइजन ले लिया, या किसी के पास इजीली गन अवेलेबल हो गई, जिसको लाइसेंस है वो गन लेकर अपना सुसाइड अटेम्प्ट उसने किया. तो इस तरीके के जो मीन्स है, तो ये मीन्स की तरफ उसका एक्सेस अगर रिड्यूस किया जा सके, काफी जगह में अभी ऐसा हो चुका है, और काफी वो मीन्स रिड्यूस किए जा रहे हैं, और more tightly regulated for those who are mentally ill and at high risk of suicide. अगर इस तरीके से कुछ किया जाए तो काफी सारे सुसाइड्स भी हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट में मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं उनके लिए ये पार्ट है. रिलेशंस ऑफन डू नॉट फॉलो इंस्ट्रक्शंस अबाउट रिमूविंग मीन्स ऑफ सुसाइड फ्रॉम एनवायरनमेंट. जहाँ हम लोग रिलेटिव्स को बताते हैं कि आपके घर में आपके पेशेंट ने अगर बात बताई है आपको कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, घर में जहाँ कहीं रस्सी है या कहीं पॉइजन रखा है या कहीं फिनाइल है, इतनी छोटी छोटी बातें हमारे घर में होती है, चाकू होता है, तो इन सब जो भी मीन्स है, तो इन सब मीन्स को जितना जल्दी हो सके हम लोग अलग जगह में हटाकर रख दें, क्योंकि नहीं तो वो व्यक्ति को इजीली अगर वो मीन्स मिलते हैं तो इजीली सुसाइड होने के भी चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं. और यही बात काफी बार रिलेटिव समझ नहीं लेते, और फिर ज्यादातर सुसाइड जब हो जाता है तब वो बताते हैं कि उसको तो घर में ऐसे इजीली ये सब कुछ मिल गया था. लेकिन रिलेटिव्स ने ये सुनना और ये एक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स शुड बी एजुकेटेड अबाउट हाउ टू बेटर एनकरेज फैमिलीज टू कोऑपरेट विद दीज गाइडलाइंस. तो ये भी बहुत जरूरी है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रिलेटिव्स को अच्छे तरीके से एनकरेज कर सके, जहां वो कोऑपरेट करे, अपने मरीज को समझ ले, अपने मरीज को ट्रीटमेंट की क्या जरूरत है वो समझ ले, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हर बात को जानकर और अपने मरीज को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाए. एक्चुअली कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप्स एंड स्कूल बेस्ड ग्रुप्स और प्रोग्राम्स शुड बी एनकरेज, क्योंकि जहां हम एक ग्रुप में रहते हैं तो ये ग्रुप में रहने से हमारे एक दूसरे के प्रति कुछ जिम्मेदारी बनती है, हम एक दूसरे को देखते हैं, उनमें कुछ चेंजेस आए हैं तो वो समझ लेते हैं, और ऐसे समझने से ही अगर किसी के मन में डिप्रेशन है या फिर किसी को सुसाइडल आइडियाज है तो ये बात भी बहुत जल्दी समझ में आ सकती है. इसलिए ऐसे ग्रुप्स को एनकरेज करना बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है. बहुत बार जो लड़के बहुत मतलब छोटे गांव से बड़े शहरों में सीखने के लिए आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, तो ऐसों के लिए भी घर का फैमिली सपोर्ट कुछ नहीं होता, तो ऐसे में उनको ये कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप्स जो है वो बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं. इसलिए ऐसे ग्रुप्स को स्ट्रेंथन करना बहुत ज्यादा जरूरी है. कुछ लॉन्ग टर्म अप्रोचेस भी है जिसमें टीचिंग दैट इज अवेयरनेस रखना वो बहुत जरूरी है. लॉन्ग टर्म अप्रोच है ये कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करते रहे, उनको बताते रहे कि उनको अपने मरीज के लिए, या फिर अगर ऐसे डिप्रेशन के सिम्टम्स या सुसाइडल आइडियाज कुछ दिखते हैं तो हाउ टू आइडेंटिफाई देम, हाउ टू उनके साथ कैसे बात करें, उनसे कैसे ये सब जानकारी ले, तो इसके लिए उनको अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है. सेकेंडली जहाँ एक बार कोई ट्रीटमेंट के लिए चला जाता है, ट्रीटमेंट तो एक बार लेते हैं, काफी हद तक पेशेंट ठीक भी होते हैं, लेकिन उनका फ्रीक्वेंटली फॉलोअप होता कि नहीं वो देखना बहुत जरूरी है. अगर फ्रीक्वेंट फॉलोअप होते रहे तो ये प्रिवेंशन अच्छा हो सकता है, नहीं तो एक बार देख लिया, एक बार ट्रीटमेंट कर लिया और फिर बाद में हम डॉक्टर से मिलने गए नहीं और बाद में हमने ट्रीटमेंट भी किया नहीं, तो
इट विल इंक्रीज द रिस्क। इसलिए पूरा फॉलोअप हमेशा होना जरूरी है। पेशेंट की तरफ से जितना होना जरूरी है उतना ही हेल्थ केयर वर्कर्स ने भी सपोर्ट करना जरूरी है। फॉलोअप के लिए याद दिलाना बहुत जरूरी है। एंड लास्टली सुसाइड स्टैटिस्टिक्स और प्रिवेंशन के लिए रिसर्च होना ये भी बहुत जरूरी है। तो ऑल दीज थिंग्स आर गवर्नमेंट कैन डू। तो गवर्नमेंट के सपोर्ट से ही ये सारी चीजें हो सकती है, और इसीलिए हम लोगों का पूरा सपोर्ट उनके इसमें होना बहुत जरूरी है। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ सुसाइडल आइडियाज एंड डिप्रेशन। पर इसके आगे चल के मुझे एक बात और बताना है कि ये सारे ग्रुप हमारे लिए हैं। हम ग्रुप के साथ रहकर या फैमिली के साथ रहकर हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम हमारे पर्सनल के लिए क्या कर सकते हैं, एक छोटी सी बात मैं बताना चाहती हूँ। हर किसी ने कोशिश करी है कि अपने लिए, क्योंकि जिंदगी में कभी ना कभी अपने को लो फील होता है, कभी ना कभी डिप्रेशन फील होता है, तो हर किसी ने अपने लिए एक होप बॉक्स बनाने की कोशिश करना है। क्या होगा इस होप बॉक्स में? तो इस होप बॉक्स में जिस चीज से अपने को बहुत ज्यादा खुशियां मिलती है, आनंद मिलता है, ऐसी सारी बातें उसमें होनी चाहिए। जैसे कि बचपन से लेकर हमको किसी ने प्राइज दिया, फर्स्ट टाइम हमने कुछ पोएम लिखी, फर्स्ट टाइम कुछ प्रिंट हुआ हमारा मीडिया में आया, या फिर मैंने कुछ कविता लिखी है और वो किसी ने ज्यादा प्रेस की, या फिर कोई बड़े हस्ती से मुझे कोई लेटर आया। तो इस तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो हम उसमें रख सकते हैं। जैसे कि और किसी ने मुझे गिफ्ट दिया, या मुझे फर्स्ट टाइम प्राइज जो मिला, तो ये सारी चीजें जो भी हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे हमको खुशी मिलती है, ऐसी हर चीज उसमें हम लोग रख सकते हैं। और कभी कभी जरूरत पड़ी तो उसमें आप बिल्कुल छोटा छोटा ये भी रखिए कि मुझे क्या कौन सा गाना पसंद है, तो वो उसमें लिख कर रखिए। तो जिस दिन हमको डिप्रेस फील हो रहा है, जिस दिन हमको लो फील हो रहा है, हम लोग वो बॉक्स खोलेंगे, और वो बॉक्स खोलकर हम लोग हर चीज का वो आनंद लेंगे। तो एटलीस्ट उतना 1 घंटा 1.5 घंटा इसमें से हमारे को ज्यादा खुशी मिलेगी, और हमारा डिप्रेशन थोड़ा सबसाइड हो सकता है। ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट के सिवा और कुछ हो नहीं सकता, ये मैं भी जानती हूँ, लेकिन ये छोटी सी बात है, ये हमारे लिए हम कर सकते हैं। और ऐसे सच में अपने को खुशियां देने वाली काफी सारी बातें हमारे लिए होती है। तो ऐसा खूब दिन के बाद अगर वो देखते हैं तो उसकी खुशियां हमको और ज्यादा मिलती है। सेकेंडली, मुझे और एक बात बोलना है कि मेरी सुरक्षा योजना करके हम एक पेज पर कुछ चीजें लिख कर रखेंगे। तो जिसमें जैसे मेरा नाम, अपना नाम लिख कर रखिए, बाद में कौन से दिन को आपने ये सुरक्षा योजना तैयार की है उसकी डेट लिख कर रखिए। अपने लिए जो भी वार्निंग साइंस है, या फिर कुछ समझ में आ रहा है ऐसे धोखा से चिन्ह, मराठी में जैसे बोलते हैं कि नींद नहीं आना, या फिर सुसाइडल थॉट्स आना, या फिर रेस्टलेसनेस लगना, या और भी चिड़चिड़ापन लगना, तो इस तरीके से हमारे साइंस कौन से हैं वो उसमें लिख के रखिए। नेक्स्ट नंबर 4 में लिखिए कि इन सब बातें जब मुझे होती है, ये सब सिम्टम्स मुझ में जब दिखते हैं, तो ऐसे में मैंने ये सिम्टम्स से बाहर आने के लिए इसके पहले मैंने क्या किया था। जैसे मुझे अगर नींद नहीं आ रही है, तो मैंने कोई किताब खोली, मैंने पढ़ ली, या फिर मैंने कोई गाना सुना, या फिर मैंने कोई फिल्म देखी, या फिर आप ऐसा बता सकते हैं कि शाम को नींद नहीं आ रही थी, शाम को मुझे रेस्टलेस लग रहा था, या फिर समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, तो मैं पैदल घूमने चला गया। तो जिस तरीके से हमने पहले ये सब प्रॉब्लम्स आए थे, उसमें से जो मार्ग निकाला था, वो ही आप लिख कर रखिए। नेक्स्ट टाइम मुझे फिर से अगर ऐसा होता है तो मैं और क्या कर सकता हूँ, वो लिखना है नंबर 5 पे, कि जैसे मैं ध्यान कर सकता हूँ, या फिर मैं और कुछ गेम खेल सकता हूँ, या फिर मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगेगा, या सिंगिंग करना अच्छा लगेगा। लिसनिंग से अच्छा तो मैं सिंगिंग कर सकता हूँ। तो जैसे आपको अच्छा लगता है, आप इन सब प्रॉब्लम आने के बाद उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, वो लिखिए नंबर 6 पर। जैसे आप नेक्स्ट इसमें जाएंगे, आप लिखिए कि आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है, आपका स्ट्रेस कम करने के लिए आप कुछ और अलग भी करना चाहते हैं क्या? मतलब किसी दोस्त से बात करना चाहते हैं, किसी काउंसलर की मदद लेना चाहते हैं, मतलब नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करना चाहते हैं वो लिख के रखिए। फिर जैसे आपके फ्रेंड है या फैमिली मेंबर है, अगर आपके कोई फैमिली फ्रेंड है या आपके फैमिली मेंबर है, आपके बफर जोन में जो आने वाले लोग हैं, इनका किसी का नंबर लिख के रखिए। उनको बताकर रखिए कि मैं रात में 12 बजे भी मुझे जरूरत है तो मैं आपको कॉल करूंगी,
या आपको कॉल करूंगा, आप प्लीज फोन उठाना और मेरे जो भी बात है मेरे को जवाब देना। तो इस तरीके से उनको बताकर भी रखना है और उनका नंबर भी वो हमारी सुरक्षा योजना में लिख कर रखना है। उनका नाम, उनका एड्रेस और उनका फोन नंबर, ये सब चीजें आनी चाहिए। अगर ये फर्स्ट वाले जो हमारे बफर जोन के कोई है, उसमें से अगर वो नहीं अवेलेबल है तो सेकंड नंबर किसका आएगा? मेरे फ्रेंड का। तो वो मेरे फ्रेंड का नाम लिखिए और उसके साथ साथ उसका मोबाइल नंबर लिख के रखिए। अपने फ्रेंड को भी ये बात बता के रखिए कि अगर मैं कॉल करूं तो आप जरूर फोन उठाना और मुझसे बात करना, क्योंकि मुझे जब डिप्रेशन लगता है, मुझे किसी की जरूरत होती है और मैंने आपको मेरे क्लोज और बफर जोन में रखा हुआ है, तो आप प्लीज मेरे लिए अवेलेबल रहना। ये सब अपने फ्रेंड को या आपके फैमिली मेंबर को बोलकर ही रखना है। और लास्टली आप उसमें लिख सकते हैं कि आपको अगर इन सब से भी फायदा नहीं हो रहा है तो आप कौन से साइकियाट्रिस्ट से बात करना चाहेंगे या कौन से डॉक्टर से बात करना चाहेंगे, या फिर आपको किस हॉस्पिटल में जाने की जरूरत लगती है। तो इस तरीके से आप अपना सुरक्षा योजना में ये सारी बातों को इंक्लूड करके रखिए। इन सुरक्षा योजना की एक कॉपी हमेशा अपने साथ रखिए, साथ ही साथ इसकी दूसरी कॉपी जो आपके बफर जोन में है उनको दोनों को भी देख कर रखिए, सो दैट कभी भी जरूरत है तो वो लोगों को ये सारी बातें मालूम होंगी कि आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए या आपके जो सुसाइडल आइडियाज है उसमें से आपको बाहर निकालने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से हर किसी ने, डिप्रेशन हो या ना हो, सुसाइडल आइडियाज हो या ना हो, अपना एक सुरक्षा योजना जैसे बनाकर रखना बहुत जरूरी होता है। तो मैं इतना बोलकर मेरा स्पीच बंद करती हूँ। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Sandhya Durge ma'am. You have thrown light on some very important points with regards to social aspects of depression, especially the Suraksha Yojana and the happiness box. That is really important, and the message that you wanted to tell has surely reached our hearts. Also, I request all the audience to send their questions on the chat box so that speakers would address them later. I hope that you all are enjoying and learning more and more about emotional fitness with each of these talks. Now, we would be listening to another song with heart touching lyrics presented by Dr. Purnima. The song is Somewhere Over the Rainbow. Over to you, ma'am. Hello, everyone. So, this is a song very close to my heart, and here is how it goes. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I've heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that we dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't I? Where happy little bluebirds fly beyond the rainbow. Why, oh why can't I? Thank you so much, Purnima ma'am. It is such a beautiful song. Every time I listen to this song, I find something new about it, some meaning that I didn't find before.